years, suppose at the age of 25, he is completing his LLB. Now you are saying कि उसको 3 साल और प्रैक्टिस चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर सिटिंग इन अ स्टेट जुडिशरी एग्जाम. So suppose 25 plus 3 that will be 28. बट सपोज उस स्टूडेंट को कैंडिडेट को एलएलएम भी करना है एंड अब आपने बोल दिया कि एलएलएम का 2 साल होना चाहिए, नॉट 1 ईयर. तो अगर इसमें 2 साल और जोड़ोगे 30 ईयर्स, राइट. तो 30 ईयर्स में क्या वो एलिजिबल होगा? हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो आज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रेस रिलीज बाय द बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या कहना है. बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोग हैं जो काफ़ी ही परेशान हैं इस बात से लेके कि 3 साल मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. अभी बहुत ही डाउटफुल है स्टूडेंट्स के बीच में. तो मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर अब क्या करेंगे हम, कि अगर 25 की एज में इफ़ वी आर एट 25 we complete our LLB, then they are saying that you have to be 3 years practicing mandatory, right? So they are saying कि 3 साल आपको practice mandatory करनी पड़ेगी, then only you will be eligible for civil judge. तो इसमें BCI का क्या कहना है, that we will be reading in this. तो देखो इसमें देखते हैं what they are saying. In the first paragraph they are starting with that the Bar Council of India shall, in the first paragraph they are starting with that the Bar Council of India and all state bar councils are strongly in favor of 3 years minimum experience at the bar. Strongly in favor, that means they are suggesting it. That they are in strongly in favor, right? कि वो 3 साल के लिए for a 3 years minimum experience at the bar to be prescribed for being considered eligible to sit for a judicial services exam. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 3 साल आपका होना चाहिए, then only you will be eligible to sit in the exam. So they are strongly in favor, Bar Council of India and all state bar councils. ठीक है. Now next they are saying that presently fresh law graduates are being allowed to sit for a judicial services examination throughout the territory of India and without having any practical experience at the bar. ठीक है, अभी that is allowed कि if you have not practiced then you are eligible to sit in a state judicial services examination. Okay, ठीक है. So now they are continuing it that judicial officers not having practical experience at the bar are mostly found to be incapable and inept in handling matters. अब देखो what word they are using. They are using that mostly they are found incapable and inept. Just because he does not have a practical knowledge, that doesn't mean कि वो incapable है in handling the matters. बिकॉज आपने जब उसको सेलेक्ट करा, ही वॉज देयर फॉर, उसकी ट्रेनिंग हुई है 1 साल, राइट. ट्रेनिंग पीरियड में उसको सिखाया जाता है, सारा प्रोसीजर सिखाया जाता है, एक एक बात बताई जाती है कि कैसे एड्रेस करना है, ये मैटर आएगा तो क्या होगा. बट नाउ यू आर सेइंग कि जस्ट बिकॉज ही डिडंट हैव अ 3 years लाइफ एक्सपीरियंस, तो 3 years प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस, तो आप उसको जो है उसको ही इज इनकेपेबल, इनएप्ट है इन हैंडलिंग मैटर्स. अब देखो आगे क्या लिखा हुआ इन्होंने. मोस्ट ऑफ सच ऑफिसर्स आर फाउंड इम्पोलाइट. दे आर सेइंग मोस्ट ऑफ सच ऑफिसर्स आर फाउंड इम्पोलाइट एंड impractical in behavior with the members of the bar. They are saying that most of the judicial officers are found impolite. Now what do you mean by this? Impolite, you think that अगर वो व्यक्ति, that judicial officer that who has completed his who has been chosen by the state government या फिर हाई कोर्ट, आपको लगता है कि वो impolite होगा? अब देखो इसमें लिखा हुआ है, alright, in this it is saying that most of the officers are found impolite and impractical in their behavior with the members of the bar and litigate. So they are saying कि they are impolite. ठीक है.
they have lack of understanding of the aspirations and expectations of advocate. They so गौर कीजिएगा यहाँ पर they are saying that they are found incapable, impolite, inept and lack of understanding in understanding the aspirations and expectations of advocate. So what kind of expectations you are expecting from a judicial officer? See, there are two parties. The judicial officer is there to do the balancing of interest, right? He will be doing the balancing of interest. So either one party will be aggrieved, right? अगर जुडिशियल ऑफिसर ने कोई एक ऑर्डर पास करा है, so obviously one party will be aggrieved. So if that judicial officer is not आपके expectations पर नहीं उतरा, तो आप बोल रहे हो कि वो आपके aspirations और expectation को समझते नहीं है, right? So this is very wrong. The words which they are using, that they are impolite, incapable, और ये आप लिख रहे हो sitting judges के बारे में, right? Who has been chosen by the state. Okay, अब देखो, now further they are saying that they have lack of understanding of the aspirations and expectations of advocates and litigants in the matter of proper and decent behavior. ठीक है, so the first paragraph they are saying कि judicial magistrate is very impolite, वो समझता नहीं है, एडवोकेट को नहीं समझता, उसको 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है क्योंकि वो समझेगा. बट आपको लगता है कि 3 साल देना इज अप्रोप्रिएट, क्योंकि वह दैट कैंडिडेट हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज LLB. सपोज 3 years या 5 years, सपोज at the age of 25 he is completing his LLB. now you are saying कि उसको 3 साल और प्रैक्टिस चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर सिटिंग इन अ स्टेट जुडिशरी एग्जाम. तो सपोज 25 + 3 दैट विल बी 28. बट सपोज उस स्टूडेंट को, कैंडिडेट को LLM भी करना है, एंड अब आपने बोल दिया कि LLM का 2 साल होना चाहिए, नॉट 1 year. तो अगर इसमें 2 साल और जोड़ोगे 30 years, राइट? तो 30 years में क्या वो एलिजिबल होगा? So he, according to you, he will be eligible for 30 when he will be 30 years. जब वो 30 साल का होगा तब वो eligible होगा to sit in a state judiciary exam, right? But at the same time you are saying कि उसमें upper limit 35 years है, 35 years है upper limit, right? और आपका जो है एग्जाम्स हर साल आते नहीं है, there is so pendency. अब अगर एग्जाम्पल देखोगे आप, हरियाणा का 2017 में आया था, जो कि किसी कारणवश कैंसिल हुआ, फिर दोबारा से एग्जाम हुआ, और अब जाके 2020 में उसकी कंप्लीट हुई है. और अब जो है अगर आप एग्जांपल लोगे यूपी का तो सालों साल में आता है. लास्ट 2018 में हुआ था, अब 2021 आ गया, अभी भी कुछ मालूम नहीं कि होगा नहीं होगा, कब होगा. तो आपके एक तो एग्जाम्स कंफर्म नहीं होते, आपका कोई कैलेंडर नहीं है जिसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट प्रिपेयर हो. चलो मान लो कि 30 ईयर्स में वो एलिजिबल होता है, और चलो मान लो कि जब वो 30 इयर्स का हुआ उसी साल रिक्रूटमेंट आ रही है, बट किसी कारणवश उसने अपना 3-5 साल तैयारी करी, बट ड्यू टू सम हेल्थ इशू ही कुडंट गिव द एग्जाम. देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? और फिर 31 का हुआ तब तो उसका अगले साल कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है. सो दिस इज वेरी अनजस्ट. और यही चीज पहले भी यही इशू पहले भी रेज हुआ था इन 2002. देखो, in third paragraph we will be reading third paragraph also, और यही चीज थर्ड सुप्रीम कोर्ट ने भी डू अवे कर दिया था, हटा दिया था, जिसके अगेंस्ट ओके यही चीज सुप्रीम कोर्ट में रेज हुआ था 2002 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डू अवे कर दिया था. वी विल बी रीडिंग थर्ड पैराग्राफ, बट फर्स्ट लेट अस रीड सेकंड पैराग्राफ. सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं. देखो इसमें लिखा क्या है, ठीक है. इट सेज दैट the inexperience at the bar is one of the primary and major reasons. देखो अभी क्या कह रहे हैं, they are saying that the inexperience at the bar is one of the primary reasons and major reasons for delays. आपको ऐसा लगता है कि just because he is inexperienced in the practice, he does not have a 3 years practice, ये एक रीजन हो सकता है कि डिले का? आपकी वैकेंसी पूरी आती नहीं है, वैकेंसी आती है आप पूरे भरते नहीं हो, सालों साल में आपकी वैकेंसी आती है, राइट? नंबर ऑफ जजेस आर सो लेस
number of judges are so less in our country that this is the primary reason that आप वैकेंसी हर साल निकालते नहीं हो. वैकेंसी आती है तो सिर्फ 30, 40, 50, जहां पर आपके हजारों लाखों आपके लोग जो हैं हर साल पास होते हैं पूरे इंडिया में, और जिसमें से आप बस यू आर जस्ट मेकिंग हैंडफुल ऑफ वैकेंसीज फॉर दैट ईयर, and you are saying just because this person is not having a practical experience for 3 years, therefore he is unable to decide, and this is the primary reason for delay. This is what you are saying. This is not at all appropriate, not justifiable also. So this is not good. Okay, now let us read further. देखो इसमें लिखा हुआ है for delay, एक बार दोबारा पढ़ते हैं. The inexperience at the bar is one of the primary and major reasons for delay in the disposal of the cases in the subordinate judiciary. ठीक है. Trained and experienced judicial officers can comprehend and dispose of matters at the much faster pace, thereby leading to efficient administration of justice. Yes, that is good. ठीक है. ट्रेंड होंगे तो जल्दी समझ पाएंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो सेकंड्स के अंदर, मिनट्स के अंदर वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है, उनको इतना एक्सपीरियंस है कि इस केस में कुछ ज़्यादा प्राइमा फेसी केस, देयर इज नो प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट इन दिस केस, राइट, तो वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. सो यस, देयर शुड बी अ ट्रेंड, बट आपको ट्रेनिंग कब देनी चाहिए? बिकॉज आपने 5 years टाइम आपने ले लिया है बच्चे का, और आप उसके बाद बोल रहे हो कि 3 साल वो और प्रैक्टिस करे जस्ट टू सिट इन अ जुडिशियल एग्जाम. तो इट इज द फॉल्ट इन यू. यू शुड बी एबल टू गिव द प्रैक्टिकल नॉलेज विद इन द 5 years टाइम पीरियड, बिकॉज 5 years बहुत ज्यादा होता है. अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस स्टूडेंट को ड्यूरिंग द 5 years आप किसी अच्छे एडवोकेट के पास भेजो जो कि उसको नॉलेज दे. क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हम सब लॉयर्स हैं, हम सब ने प्रैक्टिस करी, इंटर्नशिप करी, आपको सबको मालूम है कि क्या होता है. आप जाते हो किसी लॉयर के पास, सीनियर के पास जाते हो, सीनियर आपको क्या बोलेगा कि ये फाइल पढ़ लो, वो फाइल पढ़ लो. ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता, राइट, ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता. एंड वही आप इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट अपने कॉलेज में दे देते हो. तो व्हाट इज दिस? ये चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है. रादर इट इज़ योर ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको अच्छे एडवोकेट से ट्रेनिंग दिलवाएं ड्यूरिंग 5 years. लास्ट जो फाइनल ईयर होता है वो पूरा साल ट्रेनिंग होना चाहिए, सो दैट द स्टूडेंट एबल टू नो द एक्चुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, दैट कोर्ट कैसे चलता है, राइट. बट आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं है, बिकॉज कोई कुछ सिखाता नहीं है, नो वन इज अकाउंटेबल ऑफ इट, राइट. ठीक है. सो आप ठीक है, ट्रेनिंग होनी चाहिए, बट विद इन 5 years, जो 5 years का जो आपका टाइम है, 3 years का जो टाइम है, उसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए. और आपकी कॉलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कि अपने पास एक बड़े बड़े जो फिर कोई भी जो लॉयर्स हैं उनसे कंसल्ट करके स्टूडेंट्स की टीम बना के उनको ट्रेनिंग दिलवाई जाए, राइट. बट ये चीज़ है नहीं. एंड नाउ यू वांट कि जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज हैज कंप्लीटेड हिज LLB, so he should not be sitting in exam because he is not capable enough, right. तो आपकी डेफिनेशन ये सही नहीं है, राइट. आप बताओ what do you mean by this incapable and inept in handling matters, impolite and impracticable. अभी impolite हैं जजेस आपके अकॉर्डिंगली, and you know the demeanor of the lawyers, right. I am not pointing out on every lawyer, I'm not pointing out, I'm just saying that lawyers are also very good at the same time, right. but 3 साल प्रैक्टिस करोगे तो उसको वो पोलाइट हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है. Anyways, let us read the third paragraph. It says that in the matter of all India Judges Association and others versus Union of India before the Honorable Supreme Court of India, the requirement of 3 years experience at the bar had been done away. मतलब ये इशू पहले भी रेज हुआ था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया. तो सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि ये चीज़ प्रैक्टिकेबल नहीं है कि आप 25 साल में, 23 साल में, 26 साल में आप कंप्लीट कर रहे हो अपनी LLB, उसमें आप बोल रहे हो कि 3 साल की आपको जो है मैंडेटरी प्रैक्टिस चाहिए. उसके बाद जब वो 29-30 का होगा तब उसमें अगर उसको
MB करनी है, मास्टर्स करनी है, तब तो क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ LLM दैट वो आपका काउंट नहीं होता है ना, आपका वो काउंट नहीं होता। सो वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, तो ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है ना। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने डन अवे कर दिया इसको। अब आगे फर्दर लिखा है द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज फाइलिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द एपेक्स कोर्ट टू सीक मॉडिफिकेशन ऑफ द सेड ऑर्डर। अब ये कह रहे हैं कि BCI ने इज फाइलिंग एन एप्लीकेशन फाइल कर रही है बिफोर द एपेक्स कोर्ट टू सीक मॉडिफिकेशन ऑफ द सेड ऑर्डर। ठीक है, अब नाउ फर्दर लिखा हुआ है दैट इन आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन had invited the Andhra Pradesh Public Service Commission had invited applications। तो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, फॉर्म्स निकाले हैं जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल होंगे जिनके पास 3 साल की प्रैक्टिस है। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, नोटिफिकेशन बेरिंग नंबर इतना, डेटेड इतना, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल जजेस जूनियर डिवीजन इन आंध्र प्रदेश स्टेट जुडिशियल सर्विसेज फॉर एडवोकेट प्रैक्टिस हैविंग अ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट of 3 years as practicing advocate। So they are saying that advocates having a minimum eligibility requirement of 3 years as practicing advocate। तो यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला आंध्र प्रदेश ने कि जिसके पास भी 3 साल का एक्सपीरियंस होगा वही फॉर्म भर सकता है फॉर सिविल जज। अब इसके आगे क्या करा, एक रिट पिटीशन फाइल करी। किसने फाइल करी? मिस्टर वेंकटेश। ठीक है, हम इसको मिस्टर वेंकटेश बोलते हैं। A writ petition bearing itna has been filed before the Honorable Supreme Court of India by the petitioner Regalgada Venkatesh against the state Andhra Pradesh, wherein he has challenged the above referred notification on the ground that the requirement of 3 years experience at the bar is illegal and unwarranted। तो यहाँ पे इन्होंने रिट फाइल करी कि जो रिक्वायरमेंट है 3 इयर्स का ये इलीगल है और अनवारंटेड है। ओके, नाउ फर्दर इट सेज दैट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज फाइलिंग अनदर एप्लीकेशन टू सीक इम्प्लीडमेंट। तो ये अपने आप को इम्प्लीडमेंट करवाना चाहता है बार काउंसिल, ठीक है, पार्टी बनना चाहता है इस चीज में। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज फाइलिंग अनदर एप्लीकेशन टू सीक इम्प्लीडमेंट एज अ पार्टी इन द सेड मैटर एंड शैल प्लीड। तो ये बोल रहे हैं कि हम प्लीड करेंगे इन फेवर ऑफ अर्जेंसी एंड रिक्वायरमेंट टू हैव अ मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस राइट एट द बार as a requirement to be eligible to sit in the judicial services examination। So that is what they are saying कि हम एक इसी चीज़ में अपने आप को पार्टी बनाना चाह रहे हैं और हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर अर्जेंसी है, 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। So that is I believe कि ये सस्टेनेबल नहीं होगा because it is impracticable। It is impractical, right? It is impractical। 3 साल की आप कैसे कर लोगे? 25-26 साल का वो स्टूडेंट बनेगा, राइट? तो ये चीज़ नहीं होगा, सस्टेन नहीं होगा। और आगे जो भी फैसला होगा आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो ऑन दैट। आई विल बी रेफरिंग फ्यू केस लॉज ऑल्सो, फ्यू लॉ पॉइंट्स, एंड इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है इस चीज़ से लेकर, अगर आप सहमत हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर आप सहमत नहीं हैं तब भी आप मुझसे कमेंट करके आई विल बी रिप्लाइंग यू, ठीक है? तो लेट मी नो इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड वी विल बी मेकिंग अनदर वीडियो फॉर श्योर। और इन केस अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे, लॉ पॉइंट के किसी भी पॉइंट पे आप चाहते हो कि मैं उस पर एक इंटरप्रिटेशन का वीडियो बनाऊँ, तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। और इसको जितना शेयर करें उतना शेयर करना चाहिए, और इसको शेयर करो और लोगों से भी पूछो कि हमको अगर कोई लॉ पॉइंट पूछना है, किसी भी टॉपिक पे अगर उनको वीडियो चाहिए, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट ऑल्सो। Okay, I will be interpreting it। Okay, I will be interpreting it। ठीक है? All right, so thank you everyone, please take care of yourself। Thank you।